بھلے ہی آپ کو نہیں آیا، اس میں سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر بھی آپ کو ایک بار تو کم سے کم دیکھنی چاہیے، پھر اس کے بعد آپ یہاں پر آ کر پوچھو۔ پھر بھی ہم ایک بار شارٹ میں بتا دیتے ہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، آپ ہی بولو گے کہ میم آپ بہت دھیرے دھیرے پڑھا رہی ہیں۔ اب آپ نے کل پڑھا وہی ہم آج پڑھائیں گے، پھر کل کوئی اور اسٹوڈینٹ آئے گا وہ بولے گا ہم نے کل نہیں پڑھا تھا، کل نہیں آئی تھی ہم، آج آپ پھر سے بتا دیجیے۔ تو اپن 3 دن تک وہی چیز چلے گی تو دھیرے دھیرے ہوگا نا۔ اس لیے آپ بھی مطلب اگر نہیں آ پاتے کسی کارن سے تو آپ گھر پر ویڈیو دیکھ کر آیا کرو، پھر اس کے بعد یہاں پر آ کر نیچے آپ ریویژن کرتے ہو، اس ٹائم پر ٹیچر سے پوچھ سکتے ہو۔ اگر پھر بھی نہیں آتا تو ہم بھی بتا دیں گے، ایسا نہیں، ابھی ہم آپ کو شارٹ میں بتا دیں گے۔ دیکھیے کل ہم نے اریزر ٹول بتایا تھا، اریزر ٹول آپ سبھی نے پڑھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے نا؟ کل ہم نے بتایا تھا بلر ٹول، شارپن ٹول اور اسمش ٹول۔ بلر ٹول کا یوز ہے پکچر کو بلر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ باقی سبھی جو بھی اپنے پاس ٹولس ہیں ان میں ایک برش رہتا ہے، برش کا سائز اگر آپ یہاں سے بلر ٹول لیتے ہو تو برش کا سائز آپ یہاں سے کم اور زیادہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور بلر ٹول کا بھی ہم نے ایسا بتایا تھا کہ یدی آپ جیسے کہ ہم نے اس کو یہاں سے الٹر کنٹرول زیڈ سے ہم اس کو نارمل کر دیتے ہیں پکچر، ٹھیک ہے؟ صرف آپ کو بیک گراؤنڈ بلر کرنا ہے پکچر کا، اور اس کو باقی جو ایریا ہے اس کو چھوڑنا ہے، تو آپ کیسے کرو گے؟ یہاں سے پہلے ہم سلیکٹ کریں گے، یا تو آپ اتنا ہی ایریا سلیکٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ اتنا ہی ایریا سلیکٹ کر لیجیے جتنا ایریا آپ کو بلر کرنا ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ لیکن نارملی کیا ہوتا ہے اپن کو بیک گراؤنڈ بلر کرنا رہتا ہے اور جو مین پکچر رہتی ہے اس کو اپن کو چھوڑنا رہتا ہے۔ تو ابھی اگر آپ اتنا ایریا سلیکٹ کرو گے اور بلر ٹول کا یوز کرو گے، ہم نے یہاں سے بلر ٹول لیا تو صرف جو ایریا اپن نے سلیکٹ کیا صرف وہ ہی بلر ہوگا، اس کے علاوہ جو ایکسٹرا ایریا وہ بلر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو ایریا ہم نے سلیکٹ کیا صرف وہ ہی بلر ہوگا۔ اس کے بعد یدی آپ چاہتے ہیں کہ صرف ہماری جو پکچر ہے وہ بچی رہے، باقی ایریا بلر ہو جائے اور اس میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے، تو ہم انٹر کریں گے پورا، پہلے جو جس پکچر کو ہم بلر نہیں کرنا چاہتے، جتنی جگہ کو ہم بلر نہیں کرنا چاہتے اتنی جگہ سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم جو بھی ٹول ہمارا سلیکٹ ہے وہ سلیکٹ رہنے دیں گے، اس کے بعد ہم رائٹ کلک کریں گے اور یہاں سے کر دیں گے سلیکٹ انورس، یعنی کہ ہم نے جو ایریا سلیکٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو ایکسٹرا ایریا ہے وہ ہمیں سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہو جائے گا کہ یہاں پر یہ جو ایریا ہے یہ سلیکٹ ہو جائے گا، پہلے کیا سلیکٹ تھا؟ یہ ایریا سلیکٹ انورس کرنے سے کیا ہوگا، باہر کا پورا ایریا سلیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کریں گے، یہاں سے رائٹ کلک کریں گے، بلر ٹول کا یوز کریں گے۔ اب وہ پہلے سے ہی بلر ہے، اپن زیادہ بلر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اسے بلر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ برش کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں تو کہاں سے بڑھائیں گے؟ یہاں سے، یا پھر آپ ان بریکٹ سے بھی بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد اگلا ٹول ہے شارپن ٹول، پکچر کو شارپ کرنے کے لیے اس ٹول کا یوز کیا جاتا ہے۔ اگر جیسے آپ اس کو زیادہ کرو گے اس طرح سے ہی ہو جائے گا، اس کا یوز کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ کسی پکچر میں زیادہ وہ کونے ٹائپ ہوتے ہیں، کچھ لائنس ٹائپ کی ہوتی ہیں، اس کو ہلکا سا شارپ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تب بہت کم، ٹھیک ہے، اپلائی کرتے ہیں، اگر زیادہ کرتے ہیں تو اس طرح سے پکچر کو یہ بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد اسمش ٹول، اس ٹول سے آپ اس طرح سے کوئی جیسے ایریا آپ کو بالکل اس طرح سے دکھانا ہی نہیں ہے تو آپ اس طرح سے اس کو بلر کر سکتے ہیں، کچھ زیادہ ہی بلر ہو جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ آ گیا سمجھ میں؟ اب اس کے بعد اگلا ٹول ہے ڈاگ ٹول، برن ٹول اور اسپونج ٹول۔ اس سے ڈاٹ ٹول سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پکچر کو کی برائٹنیس بڑھاتے ہو تو کیا ہوتا ہے پکچر ایسی لگتی ہے گوری ہو گئی ہے، اس سے بھی آپ یہ کر سکتے ہو، پکچرس کو گورا کر سکتے ہو۔ آپ کے سلیبس میں لکھا ہوگا پکچر کو گورا و کالا کرنا، یہ وہی ٹول ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ پکچر کو گوری کر سکتے ہو۔ یہاں پر بھی برش کا سائز آتا ہے، جیسے باقی برش کا سائز بڑھا سکتے ہو اسی طرح سے اس کا بھی بڑھا سکتے ہو۔ اگلا ٹول ہے برن ٹول، اس سے پکچر کو آپ کالا کر سکتے ہو، یعنی کہ اس سے کانٹراسٹ بڑھ جاتا ہے پکچر کا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ پکچر کو کالی کر سکتے ہو، جتنی زیادہ کرتے جاؤ گے اتنی زیادہ یہ کالی ہوتی ہے، نہیں ڈارک نہیں ہوتا ہے۔
उसमें ना कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है, कलर नहीं आता, सिर्फ ब्लैक कलर थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है। जैसे कि हम आपको कौन सी पिक्चर लेंगे, ये वाली पिक्चर लेंगे, इस पर हम ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे तो ये देखो ये डार्क होने लगी, थोड़ा सा रेड रेड सा और ब्लैक ब्लैक सा कलर आने लगता है। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है ये। और इस टूल से क्या होता है, इस टूल से आप पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में कर सकते हैं। अब अभी हमने इसमें क्या किया, पूरी पिक्चर सिलेक्ट है तो पूरी पिक्चर में अप्लाई हो रहा है। आप कुछ एरिया में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करोगे, अभी हमने बताया था, पूरा उतना एरिया सिलेक्ट कर लो। मान लो हमें सिर्फ इतने एरिया में करना है, बाकी एरिया छोड़ना है, उतना एरिया सिलेक्ट करो तो सिर्फ उतने में ही अप्लाई होगी। इसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा संभाल संभाल के नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर मान लो आपको अंदर वाला जो एरिया है इसको छोड़ना है तो आप सेलेक्ट इनवर्स करो। सेलेक्ट इनवर्स से क्या होता है कि जो एरिया हमने अभी सिलेक्ट किया है उसके अलावा जो एरिया बचा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेता है वो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब इसके बाद अगला है पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इन टूल्स का यूज क्या है, फाइल पर जा रहे हैं, पहले हम यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, और ओके। अब इसके बाद हम यहाँ से कोई पिक्चर लेकर आते हैं, मूव टूल से इसको इस पर लेकर गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से राइट राइट क्लिक कर रहे हैं, पास सिलेक्शन टूल। ठीक है, अभी इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अपन को थोड़ा सा इसको जूम करके देखना पड़ेगा। हैंड टूल से आप इसको इस तरह से फिक्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम जा रहे हैं राइट क्लिक करके पास सिलेक्शन टूल, और यहाँ पर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ले लेते हैं। अभी इस पे दोनों ही अप्लाई नहीं हो रहे, चलिए ये वाला ऑप्शन हम आपको कल बता देंगे। ठीक है, हम देख लेंगे क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, फिर इसके बाद बता देंगे। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी तक हमने जब पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना बताया था उसमें अपन ने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल का यूज किया था। जैसे कि आपको किसी फ़ोटो के ऊपर कुछ लिखना है, या फिर आपने कोई बैकग्राउंड बनाया है उसके ऊपर आपको कुछ लिखना है, कोई इंफॉर्मेशन लिखना है, तो उसके लिए अपन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल का यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो टूल होता है, नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखाता है वो इससे लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले इस पेज को रिमूव कर देते हैं, कैंसिल कर दिया है। ठीक है, हम फाइल पर जा रहे हैं, न्यू पर जा रहे हैं और यहाँ से हम कोई पेज ले लेते हैं। इसके बाद हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, तो आप चाहो तो यहाँ पर जैसे कि हमें ग्रेडियंट टूल लेना है, इसके ऊपर हमें कुछ लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे, कितनी जगह में लिखना है उतनी जगह आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये देखिए कर्सर आने लगा, कर्सर आ रहा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप चाहो तो पहले से ही कलर चेंज कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। हम यहाँ पर जाएंगे, कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर कलर सभी को आता है कलर चेंज करना, यहाँ से आप लाइट डार्क कर सकते हैं कलर को, जो भी आपको कलर लेना है आप यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, कलर सेलेक्ट हो जाएगा, अब उसी कलर का टेक्स्ट आएगा। अगर आपको टेक्स्ट की जो है साइज बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, अगर टेक्स्ट लिख लिया है, अगर टेक्स्ट लिख लिया है तो क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं लिखा तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑप्शन दिख रहा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 11 pt, यहाँ से हम साइड पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कितनी साइज चाहिए आपको, जैसे कि हमें चाहिए 40, क्लिक कर देंगे, देखो बढ़ गई। इस तरह से आप और भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लैंग्वेज का, फॉन्ट का। फॉन्ट जैसे अपन एम एस वर्ड एक्सेल में चेंज करते हैं, यहाँ पर भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ से फॉन्ट लेना है आप यहाँ से फॉन्ट
सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्लिक किया, टेक्स्ट हमारा वही है, बस हमारा जो लिखा था टेक्स्ट उसकी स्टाइल चेंज हो गई। ठीक है, तो जो भी आपको फ़ॉन्ट लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसा आप फ़ॉन्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। जैसे कि इस फ़ॉन्ट में सिर्फ आप इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड वाला ऑप्शन नहीं आता। रेगुलर कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा और इटैलिक कर दोगे तो इटैलिक हो जाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं, नॉर्मल जो फ़ॉन्ट होता है वो हम एरियल या फिर कैलिबरी सेलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ से एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अब इसमें ऑप्शन बढ़ गए, पहले कम आ रहे थे अब ज़्यादा आने लगे, तो हमें नैरो करना है। इसके अलावा यहाँ से रेगुलर करना है, मतलब नॉर्मल, इटैलिक करना है, ओनली इटैलिक हुआ है। बोल्ड और इटैलिक अगर दोनों साथ में करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, बोल्ड इटैलिक पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप बोल्ड पर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक पर कर दोगे तो सिर्फ इटैलिक हो जाएगा, और बोल्ड इटैलिक पर कर दोगे तो बोल्ड और इटैलिक दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन हल्के से अप्लाई होते हैं, आपको शार्प करना है, क्रॉप करना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करना है, ये ऑप्शन स्मूथ करना है, थोड़े से हल्के से टेक्स्ट पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हम 48 कर देते हैं। टेक्स्ट का आपको अभी हमारा टेक्स्ट कहाँ है, सेंटर में, बीच में है। अगर आप लेफ्ट में करना चाहते हैं लाइन, राइट में करना चाहते हैं लाइन, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ इसको सेंटर में ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से सभी को समझ में आ गया, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो की ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में अभी क्या सिलेक्ट है, नन। हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ से हम कुछ जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा, यहाँ से ओके कर। टेक्स्ट को घुमाना है, तिरछा दिखाना है, तो उसके लिए ऑप्शन अप्लाई होता है। हम यहाँ से आपको लेकर दिखाते हैं, ये वाला देते हैं, ऊपर चला गया है टेक्स्ट। अगर आप अभी यहाँ पर कुछ लिखोगे तो इस तरह से लिखा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको और चेंज करना है अपन यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि इस तरह से करना है, बैंड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको बदलना है इस तरह से। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन आपको बदलना है। आ रहा है समझ में, इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपको जैसे कि हमने फ्लैग लिया था, ठीक है, इसमें अभी तीनों बराबर है, हम जैसे कि बैंड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इससे क्या होगा, तिरछा होने लगेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कम या ज़्यादा करना चाहते हो, ये देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कम ज़्यादा होने लगे। ठीक है, इसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन कम ज़्यादा करना है। आ गया समझ में, आ रहा है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको अब ये कर लिया है, नॉर्मल करना है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से जाकर हम कर देंगे नन। ठीक है, तो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, जैसे कि हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, ऊपर चला गया, अगर हम इसको वर्टिकल कर देंगे तो ये वर्टिकल यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल लिया जाएगा, वर्टिकल कर देंगे तो इस तरह से वर्टिकल लिया जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। अब हम इसको यहाँ से कर लेते हैं नन और ओके। ठीक है, अब आपको इसमें और कुछ भी लिखना है, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो, आप इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन इसमें जब तक लिख सकते हो जब तक आपने यहाँ पर कर्सर आ रहा है। अगर आपने कोई टूल सेलेक्ट कर लिया, यदि आपने कहीं बाहर कहीं क्लिक कर दिया, टूल सेलेक्ट कर लिया, अभी आप चाहो तो इसको छोटा और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब हमने मान लीजिए यहाँ से ये वाला टूल सेलेक्ट कर लिया, अब आपका ये बन चुका है। अब आप सिर्फ इसको मूव कर सकते हो उठाकर। अगर आपको इसमें एडिटिंग करनी है तो ये देखिए एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अगला टूल है वर्टिकल टाइप टूल। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आप जो टेक्स्ट आता है वो वर्टिकली लिख सकते हो इस तरह से। पहले हम इसको हटा देते हैं, पुराना वाला जो है। हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, या तो आप दूसरा ले लीजिए, या फिर हम राइट क्लिक करके बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर ग्रेडियंट टूल ले लेते हैं, या फिर आप इस तरह से यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल पैटर्न वैटर्न ले लीजिए, तो इस तरह से। लेकिन अभी क्या है, बैकग्राउंड सेलेक्ट है इसलिए इसके ऊपर आ रहा है वो।
मतलब इसके नीचे आ रहा है, अगर हम यही सिलेक्ट करते तो इसके ऊपर आ जाता। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल पर जा रहा है, न्यू पर जा रहा है, और हम यहाँ से एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, हम वर्टिकली टाइप टूल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या आएगा, आपका टेक्स्ट वर्टिकली आएगा, जैसे हमने लिखा आई सी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आएगा आपका टेक्स्ट वर्टिकली, अगर आप ये वाला टूल सेलेक्ट करते हैं, सेकंड वाला। सारे ऑप्शन सेम है। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला ऑप्शन चाहिए आपको, कैसा कर दिखाना है वो सब आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो कैसा आएगा, वर्टिकली। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से कोई भी कलर के अंदर टूल टेक्स्ट आता है, मास्क के अंदर आता है, सॉरी हम इस तरह से बोल सकते हैं, ये इस तरह से आता है टेक्स्ट। ठीक है, मास्क हॉरिजॉन्टल टाइप मतलब है तो ये नॉर्मल ही, लेकिन ये किसके अंदर आता है, इस तरह से मास्क के अंदर आता है ये मास्क, इसलिए इसका नाम है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। वर्टिकल टाइप मास्क टूल सेलेक्ट करेंगे तो ये वर्टिकल ही आएगा। अभी तो अपन को नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन जब इसको अपन किसी भी टूल के द्वारा या सिलेक्ट करते हैं, टूल से कुछ करते हैं, तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं। बाकी इसमें नॉर्मल आते हैं इस वाले में, और इसमें अगर आप लेंगे तो कैसे आएंगे, मास्क अपने आप आता है। अब जैसे ही किसी मूव टूल पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह से ये मास्क हट जाता है, और ये इस तरह से टेक्स्ट जो है आपका इस तरह से आने लगता है। ठीक है, आ गया समझ में टेक्स्ट टूल इनका। आप नॉर्मली अपन फर्स्ट वाला जो टूल होता है उसका यूज करते हैं। अब इसमें भी कलर वगैरह लेना है, कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, अपन सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, जो साइज़ है वो आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको स्मूथ करना है, साफ करना है, डायरेक्शन आपको बदलना है, लेकिन यहाँ से कलर आप नहीं ले सकते, और ये वाला ऑप्शन भी इस पर अप्लाई हो रहा है। बस आप इसमें कलर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मली आता है ऐसा इस तरह से, मास्क में आता है। ठीक है, अब इतने में किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना। अब इसके बाद इसमें इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा एक रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्टिकल, इलाइप्स टूल, ठीक है, पॉलीगोनल टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल। ये सभी यू से एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि फिर से हम यहाँ पर फाइल पर जा रहे हैं और न्यू पर जा रहे हैं, और यहाँ से हम न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट वाला टूल सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल टूल। ठीक है, इससे रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, चौकोर बॉक्स। अगर आप कहीं पर रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से, जैसे अपन एम एस वर्ड में, एक्सेल में अपन कोई भी शेप वाला ऑप्शन लेते हैं तो क्लिक करते हैं, जैसे हमने रेक्टेंगल टूल, कैसे साइन आ रहा है, प्लस का साइन। अब आपको कितनी जगह में वो टूल चाहिए तो अपन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जितनी भी जगह में आपको वो शेप चाहिए आप उतनी जगह सेलेक्ट करिए और छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया। आप शेप के अंदर कोई शेप बनाना चाहते हैं, इस तरह से आप कुछ जैसे इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, इसके अंदर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इतना आया समझ में अभी, सिर्फ इससे आप सिर्फ रेक्टेंगल ही बना सकते हैं, जैसा भी आपको लेना है। ठीक है, अब आपको जो भी आपने कलर ले लिया, आपको कलर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कलर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ से सभी कलर चेंज करना आता है यहाँ सभी को। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसका कलर चेंज कर दिया, चेंज हो रहा है। अगर हमने जैसे मान लीजिए इसका कलर यहाँ से ले लिया, ठीक है, अब हमने इसका कलर लेने के बाद एक दूसरा शेप हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और हम यहाँ से इसका कलर दूसरा ले लें। अब आप ये जो पीछे वाला बॉक्स है इसका कलर चेंज नहीं कर सकते, अभी आप सिर्फ इसका कलर चेंज कर सकते हो जब तक आप कोई और टूल सेलेक्ट नहीं करते, या फिर आप यहाँ से कोई और दूसरा शेप नहीं ले लेते, तब तक आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। यदि आपको
اس کا کلر چینج کرنا ہے پیچھے والا یا پھر اس کے پہلے والا، جیسے برڈ میں ایکسل میں ہوتا ہے اپن جو بھی سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرو اور اس کا کلر چینج کر لو یا پھر جو بھی کرنا ہے وہ کر لو. اس میں آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس ٹائم پر کر لیا تو کر لیا، بعد میں نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہاں سے ابھی یہاں پر کیا سلیکٹ کرنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپن اونلی کلر لے سکتے ہیں. اگر آپ کو اس میں کوئی اس طرح سے کچھ پیٹرن وغیرہ چاہیے تو آپ یہاں سے پیٹرن سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الگ الگ ٹائپ شیپ کے اندر آیا سمجھ میں اتنا. اب اس کے علاوہ پھر اتنا ہو گیا. اس کے بعد ٹھیک ہے، جب بھی آپ ٹیکسٹ لو گے یہاں پر اس طرح کا ہی آئے گا جب تک آپ نے یہ سلیکٹ کر کے رکھا ہے. اب آپ چاہتے ہو اس میں کلر دینا چاہتے ہو، مان لو ہم نے یہ والا کلر سلیکٹ کر دیا، نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہاں پر پہلے ہمیں یہ والا آپشن سلیکٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ کو اس میں کوئی کلر لینا ہے تو آپ کو یہ والا آپشن سلیکٹ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آپ یہاں سے کلر لے سکتے ہو. دیکھو آ گیا، پہلے نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہم نے یہ آپشن سلیکٹ کر کے رکھا تھا. اس کے بعد یہ جو اور بھی آپشنس ہیں اس میں ہم آپ کو اگلی کلاس میں بتائیں گے. یہ اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو آپشن دکھ رہے ہیں، رائٹ کلک کریں گے ریکٹینگل ٹول یہ والا ٹول ہے. ٹھیک ہے، راؤنڈیڈ ریکٹینگل ٹول یہ والا ٹول ہے. الپٹیکل ٹول ٹھیک ہے یہ والا ٹول ہے. پالیگونل ٹول یہ والا ہے. لائن ٹول، کسٹم شیپ ٹول، یہ ہم آپ کو اگلی کلاسز میں بتا دیں گے. ٹھیک ہے، شیپ بنانے کے لیے الگ الگ ٹائپ کا، جیسے کہ آپ کو راؤنڈیڈ ریکٹینگل بنانا ہے ریکٹینگل ہی بنے گا لیکن اس کے یہ جو کونے ہیں نا یہ آپ کو راؤنڈ میں ملیں گے. ویسے اس ٹائپ کے رہتے ہیں، ابھی آپ کو راؤنڈ میں ملیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد الپٹیکل، اس سے آپ گول میں بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے پالیگونل، اس سے آپ اس طرح سے پالیگونل بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور یہ والا ٹول لائن ٹول ہے، اس سے آپ لائن بنا سکتے ہو. اور یہ والا جو ٹول ہے یہ ہم آپ کو اس میں تھوڑے سے زیادہ آپشن ہے تو یہ ہم آپ کو کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟